Hello friends, welcome to Lokayan IS Academy. My name is Praveen Akkano. Friends, many of you must have appeared for recent UPSC preliminary exam. Many must be appearing in the next year. Now today we are here to discuss about recent CSAT paper, that is CSAT 2024. Friends, recently or in recent years, CSAT has become a deciding factor in clearing preliminary exam. So there are various reasons. Though the nature of CSAT has become qualifying, still many students are finding it difficult to acquire 66 marks out of 200 marks. Why 66 marks? Because UPSC has made a rule that one should get 33% marks in a CSAT paper. CSAT paper is of 200 marks, so 33% of 200 is 66 marks. Now, on the onset, it seems very easy that anybody can get this amount of marks, but looking at recent nature of the papers, it is actually quite tricky. And today we are here to discuss why it is tricky, what are the reasons students are failing in CSAT exam, and why their prospect of clearing UPSC is becoming difficult due to CSAT. So today the subject or the topic of our discussion is CSAT 2024 analysis part 1. Why part 1? Because today we are going to look at only quantitative aptitude and reasoning part. In the part 2, we are going to look at reading comprehension part, right? There are broadly 3 sections in UPSC CSAT paper: quantitative aptitude, logical reasoning, and reading comprehension. So today we are focusing on quantitative aptitude and reasoning. So first of all, we will look at this year's composition of question paper. That means which section carries how many questions or which section carries how many marks. So structure of this year's CSAT paper was: reading comprehension carried 27 questions, around 16 passages were asked, and based on those passages 27 questions were asked. Now the portion of reading comprehension has been constant since last 4 or 5 years. 26 से 27 क्वेश्चंस उस पे पूछे जाते हैं. The nature of the questions was moderate. Now last year in 2023 CSAT paper, reading comprehension was easier, but quantitative aptitude was a little difficult. This year they have increased the nature of reading comprehension, so it has become a little moderate. बट क्वांट का जो पार्ट है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, इजी टू मॉडरेट. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे देयर वर अराउंड 39 क्वेश्चन, 39 to 40. So in various analysis videos you will find this number to be changing because there is a slight thin line between few questions. Some questions can be termed from reasoning, some questions can be termed from quant also. So around 39 to 40 questions were asked on quant, and around 13 to 14 questions were from reasoning, which were of a little easier nature. Quant का part थोड़ा moderate था. Now देखो, there are 80 questions in all. 80 questions, each question carries 2.5 marks. So 200 marks का ये हमारा पेपर है. 80 में से quant का portion देखो 50% है, around 50%. So the most important section in this paper is quant. Last year भी around 40 क्वेश्चन थे, उसके पहले भी around 35 क्वेश्चन थे. So quant का जो क्या बोलते हैं उसको पोर्शन है या quant का जो वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रहा है. So while preparing you have to keep this in mind. और एक बात है कि प्रीवियसली क्या होता था कि CSAT पेपर क्वालिफाइंग है, ये देखिए स्टूडेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर last 2 months or last 2-3 months, right? But looking at the nature of the question paper, I will advise you to start preparing for CSAT from right now. क्योंकि एक साल में मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रोज CSAT का प्रिपेयर करना है या फिर रोज 3-4 घंटे दिन, नहीं, बट एक वीक में एक दिन में 1-2 घंटे तो अभी CSAT को दे दो. फॉर द स्टार्टर यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. It is the best resource for you to
डिसाइड योर लेवल, डिसाइड योर एबिलिटी टू सॉल्व सीसैट पेपर, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वैसा क्वेश्चन तुम्हें बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा. सो PYQs, that is previous year's questions, are the best resource for you. So ये हो गया 3 सेक्शन का ब्रॉड बाइफर्केशन कि क्वांट में कितने क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने थे और रीजनिंग में कितने थे. नाउ रीडिंग का तो आज हम नहीं दिख रहे, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा. पार्ट 2 में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. There will be some students who are good at maths, so they will focus on quant. There will be few students who are very good at reading comprehension. They will focus on that section. So, but UPSC क्या करता है कि you cannot ignore any section. You cannot ignore reasoning also कि कम क्वेश्चन है तो मैं ये छोड़ दूंगा, नहीं. Reasoning carries lesser questions, but they are of easier nature. So you cannot skip those questions, right? Maths का पार्ट है, अगर आप मैथ्स में वीक है देन ऑल्सो यू कैन नॉट स्किप एंटायर सेक्शन, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन छोड़ दिए तो बचे 40 में आपको आउट ऑफ लेने पड़ेंगे या फिर एक्यूरेसी लेवल आपका मोर देन 90% होना चाहिए. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल. आई विल एडवाइस यू कि यू हैव टू बी एटलीस्ट एवरेज इन ऑल द सेक्शंस, राइट. सो मूविंग ऑन, अब क्वांट में अराउंड 40 क्वेश्चन थे, राइट. सो लेट्स सी ऑन विच पार्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर. यूपीएससी रिसेंटली क्या कर रहा है कि बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमने स्कूल लेवल पे मैथ सीखा है उस पे सबसे ज्यादा एम्फोसिस है. मोर वेटेज इज गिवन टू बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी. अब बेसिक न्यूमरेसी या बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन से चैप्टर आते हैं उसका भी बाइफर्केशन मैंने अगले स्लाइड में दिया है. लेकिन लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस were based on basic numerical ability, right? जो हमने, मैं 10th भी नहीं बोलूंगा, 8th स्टैंडर्ड तक जो मैथ सीखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है अराउंड 30 आउट ऑफ क्वांट के जो टोटल 40 है उसमें से 30. एवरेज पे 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज पे अराउंड 4 क्वेश्चन. परसेंटेज हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो उस पे 4 क्वेश्चन थे. पार्टनरशिप पे 1 क्वेश्चन था. वर्क एंड टाइम 3 questions. So in all there were 40 questions on quant, right? So 40 questions quant पे थे, लेकिन पिछले साल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जैसे प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है या फिर ज्योमेट्री है, उस पे एक भी क्वेश्चन नहीं था. सो यूपीएससी ऐसा करता है हर साल कुछ तो सरप्राइजिंग एलिमेंट. 2023 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी पे अराउंड 9 क्वेश्चन थे. So students focused on those chapters, but this year there was not a single question on that beat or on that chapter, right? Even geometry पे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं था. So you have to be prepared thoroughly. ये कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इस साल नहीं पूछा लेकिन अगले साल जरूर पूछ सकते हैं. सो बेसिक न्यूमरेसी या बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो 30 क्वेश्चन थे, उसमें से डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन थे, वो 9 क्वेश्चन थे, राइट. सो नेक्स्ट, अब देखो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 30 क्वेश्चन थे उसका बाइफर्केशन है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम पे. नंबर सिस्टम इज अ वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ यूपीएससी. दे ऑलवेज आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन इट. सो नंबर सिस्टम पे 13 थे, उसमें से जो क्वेश्चन का एक टाइप है डेटा सफिशिएंसी करके, उस पे 6 क्वेश्चन थे 13 में से. देन सिंप्लीफिकेशन या फिर बॉडमास रूल पे 2 क्वेश्चन थे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पिछले साल 2 क्वेश्चन थे, इस बार एक भी नहीं था. HCF, LCM, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इस पे 2 क्वेश्चन थे. सर्ट्स एंड इंडाइसेस, अगेन अ फेवरेट चैप्टर ऑफ यूपीएससी, 4 क्वेश्चन थे. इक्वेशंस, दैट इज फॉर्मिंग एन इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल्स लाइक एक्स का यूज करके इक्वेशन बनाना या फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे. इस पे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे 1 क्वेश्चन था और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस पे 2 क्वेश्चन थे. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो यूनिट्स के कन्वर्जन रहते हैं,
दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ चैप्टर है. ये सारा बेसिक न्यूमरसी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चंस. और बचे हुए जो एवरेज, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, ये सारे मिला के 10 क्वेश्चन. सिमिलरली रीजनिंग का भी बाइफर्केशन देखते हैं. 13 क्वेश्चन थे रीजनिंग पे. सीरीज एंड सीक्वेंस, ऑलवेज देयर आर क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चन थे. कोडिंग डिकोडिंग पे 2 थे. क्यूब्स एंड डाइस पे 1 था. कैलेंडर पे 1, क्लॉक पे 2, वेन डायग्राम्स पे 1, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे 2, और क्रिटिकल रीजनिंग की कंक्लूजन निकालो, इसका आर्गुमेंट पेश करो या फिर अजम्पशन बताओ. ऐसे क्वेश्चन उस पे 2 क्वेश्चन थे. सो इन ऑल 13 क्वेश्चन. ऑलवेज रीजनिंग का जो वेटेज रहता है वो हमेशा तीनों सेक्शन में सबसे कम रहता है, लेकिन इसमें भी जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे सिलोजिज्म वगैरह, उस पे क्वेश्चन नहीं था. ये बाइफर्केशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है. अभी लास्ट 3, 4, 5 साल से नंबर सिस्टम पे हमेशा 10+ क्वेश्चन रहते, राइट? तो वो चैप्टर, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर मैथमेटिकल स्टडी, राइट? कोई भी बुक निकालो मैथ्स का, जो क्योंकि मैथ्स का बेस ही नंबर है, तो नंबर सिस्टम आपको सीखना ही है. और उस पर भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटीजर का कंसेप्ट पता है, आपको नेचुरल नंबर का कंसेप्ट पता है, आपको ऑड इवन का जो रिलेशनशिप है, 2 ऑड नंबर ऐड किए तो इवन नंबर आता है, 2 ऑड नंबर मल्टीप्लाई किए तो ऑड नंबर आता है, ये जो रूल्स है, इन सारे बेसिक रूल्स पे क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर मैथ पे या कॉन्ट पे 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चंस. मैं इजी बोलूंगा क्योंकि बहुत बार बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उसमें यूज होता है. अब जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. एंड मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आवर कॉमन सेंस. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, राइट? और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बताता हूँ कि जहां पे आपको लगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पूछा है, तो खुद को बताने का कि इतना कैलकुलेशन, इतना दैट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ये करना ही नहीं है. इसका मतलब वहीं पे कोई तो लूप होल है, वही शॉर्टकट है, या फिर कोई तो वे आउट है जिससे आप वो सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाना ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जानता है दे आर नॉट टेस्टिंग योर मैथमेटिकल एबिलिटी, दे आर टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे आर टेस्टिंग योर कॉमन सेंस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. सो ये था सीसैट पेपर का इस साल का पूरा स्ट्रक्चर, चैप्टर वाइज, राइट? इससे कुछ मैंने की ऑब्जर्वेशंस फिर आपके लिए बनाई है कि व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस ऑफ सीसैट 2024 पेपर, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज द रिसेंट ट्रेंड ऑफ मोर एम्फेसिस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को. 40 क्वेश्चन, मतलब हाफ वेटेज इज गिवन टू क्वांट. दिस ईयर ऑल्सो 40 क्वेश्चंस वेर अलॉटेड टू दिस सेक्शन, right? That was the first observation. Now next, more focus was on basic numeracy part. नाम में ही बेसिक है, इसका मतलब यूपीएससी इज नॉट आस्किंग यू टू स्टडी वेरी कैट लाइक प्रिपरेशन नहीं करना है, राइट? या फिर बैंक पीओ वाला प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पस. देखो, थिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन 2 ways. If thing is very difficult, then it becomes complicated. If thing is very easy, then also it becomes complicated. क्योंकि हमने बहुत easy वाला तैयारी नहीं किया होता है, right? We never study too easy things, because हमें फिर लगता है कि study किया, ऐसा लगता ही नहीं वहां पे, right? So you have to keep that in mind. You start with very easy concepts. You start with very basic things, क्योंकि basic numeracy में वही expected. 30 क्वेश्चन मतलब देखो हाउ मेनी मार्क्स, 30 into 2.5, 75 मार्क्स तो यहीं पे हो गए, राइट? सो देन द फोकस चैप्टर्स, द फोकस इन दिस एग्जाम वाज ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगेन एज आई टोल्ड यू, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इक्वेशंस, एक्स का यूज करना, वेरी बेसिक थिंग विच वी हैव लर्न फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड,
हाउ टू यूज एक्स फॉर थिंग्स दैट वी डोंट नो, जो पता नहीं उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए एक्स अज्यूम करते हैं और उससे हम इक्वेशन बनाते हैं. हाउ टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हाउ टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट, अल्जेब्रिक इक्वेशन. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. सो इक्वेशन पे 5-6 क्वेश्चन थे, परसेंटेज पे 4 क्वेश्चन थे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर. सी, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन आर वेरी, मतलब वी ऑलवेज यूज देम इन आवर प्रैक्टिकल सिनारियोज और इन आवर डे टू डे लाइफ. परसेंटेज तो हम कहीं पे भी यूज करते हैं, लेकिन when it comes as a sum, when it comes as a problem in exam paper, then it seems difficult. Otherwise we do it on daily basis. Work and time पे 2-3 क्वेश्चन थे. डेटा सफिशिएंसी, now data sufficiency is not a altogether different chapter. It uses all the chapters that are in quantitative aptitude or reasoning. उसमें क्या होता है कि you are given a question and you are given 2 statements and you have to decide whether those 2 statements are enough to solve the given question or not. Now that question can be from number system, that can be from average, that can be from percentage, that can be from reasoning wala chapter in blood relation, etc. You have to only decide whether the given data is sufficient to solve the given question or not. So data sufficiency का अलग कोई existence नहीं है. It exists on another chapters. So that is why I haven't take it as a new chapter or different chapter. It is part of all other chapters, right? बस उसका nature of question is different. वो भी हम देख लेंगे. इस साल there were around 10 questions of data sufficiency nature, right? So keep that in mind. Last year भी 6-7 ऐसे question थे. Then surprisingly there were no questions on popular chapters such as permutation combinations, probability, geometry, arithmetic progression वगैरह, syllogism, reasoning में, या फिर आई थिंक ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन नहीं था. सो वो चैप्टर भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो पेंडुलम स्विंग होता रहता है, कभी ये चैप्टर को फोकस, कभी दूसरे चैप्टर, वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग. More questions on data sufficiency, as I said, 10 questions were asked. Modest number of questions on reasoning. That has also become trend कि 13 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन हर साल रहते. लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज इजी टू मॉडरेट. लास्ट ईयर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इस साल इजी टू मॉडरेट है. सो इट इज अ वेलकम न्यूज, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर ही रिपीट होगा, लेकिन इस साल इजी टू मॉडरेट है. Now that is the thing, you have to find out the easy questions. When you come out of the exam hall and then you say, okay, this question was very easy, but I skipped it or I didn't look at it. So that is of no use, right? You have to find or you have to locate easier questions. And for that, practice is important. When you practice multiple types of questions, अगर नंबर सिस्टम का चैप्टर है, उस पे अगर मल्टीपल टाइप्स अगर आप प्रैक्टिस करो, एक ही टाइप प्रैक्टिस करने का कोई यूज नहीं. व्हेन यू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल हैव द फैमिलियरिटी विद द क्वेश्चंस, राइट. मल्टीपल टाइप्स करने से वैसा ही क्वेश्चन आया तो वो फैमिलियर लगेगा. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, और यू विल बी एटलीस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, right? When you feel confident about the question, then only you will be able to solve it. So for that confidence you have to practice and practice smartly, right? Percentage पे एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना is of no use. 10 टाइप के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, that is enough. ठीक है. So now we'll move towards our questions. Here I am using set A of UPSC CSAT 2024. सेट ए के क्वेश्चन है. सो अकॉर्डिंगली मैंने वो क्वेश्चन नंबर भी सेम रखे, सो दैट इफ यू हैव क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड इट विल बी इजियर, राइट. सो नाउ विदाउट फर्दर इंट्रोडक्शन आई विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेट ए, राइट. Just read the question.
Now see, the question is, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? Now, I'll draw a cube here. Question is कि इसको कितने कट्स लगेंगे फॉर वी टू गेट 64 आइडेंटिकल क्यूबिकल पीसेस, राइट? अब कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि अगर इस क्यूब के अगर मुझे 2 टुकड़े करने, देन आई हैव टू यूज ओनली 1 कट. एक कट से आई विल गेट 2 पीसेस, राइट? सो कम कट्स लगेंगे ज्यादा पीसेस बनाने के लिए, ये तो ऑब्वियस है. अब देखो 1 2 3, ये कितने कट हो गए? अगर मैं वर्टिकली z एक्सिस से कट कर रहा हूं तो ये 3 कट्स हो गए, राइट? लेकिन 3 कट से मुझे 1 2 3 4 पार्ट्स मिल गए. अब मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूं, 1 2 3, यही कट ऐसा जाएगा इधर, मतलब ये x एक्सिस वाला कट, सॉरी या x एक्सिस वाला, ये y एक्सिस वाला. अब z एक्सिस वाला कट देते हैं, 1 2 3, ये कट ऐसा करेगा, राइट? So every side of the cube, every edge of the cube is cut into 4 parts, and it will give us how many number of pieces? 64. So how many cuts we used? X axis पे 3 cuts, Y axis पे 3 cuts, Z axis पे 3. Total 3 3 3 9 cuts. So option number B is correct, right? Option number B, that is 9 cuts is correct. Next, question number 6. In the expression 5 star 4 star 3 star 2 star 1, star is chosen from plus minus and multiplication, each at most 2 times. तीनों साइंस यूज करने हैं और इसमें से ज्यादा एक साइन 2 बार यूज कर सकते. What is the smallest non-negative value of the expression? Now we need smallest number. नॉन निगेटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए. सो ये ट्रायल एंड एरर वाला क्वेश्चन है. अगर 5 4 3 2 1 ऐसा है तो सपोज मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया, यहाँ पे भी माइनस रख दिया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इनटू कर दिया. हम जस्ट चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा. सो पहला बॉडमास रूल के हिसाब से पहला ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है? सो 5 minus 4, sorry, 2 into 1 is 2 minus 5 minus 4 will be 1 plus 3. So 3 plus 1 4 minus 2 2 वैल्यू है, ऑप्शन में भी है, लेकिन whether it is correct or not we have to decide. There will be some other iterations, we have to check them also. So let's check. So 5 minus 4 minus 3 plus 2 into 1, राइट? अब देखो मैंने तीनों साइंस यूज किए हैं. माइनस वाला साइन 2 बार यूज किया है क्योंकि उन्होंने बताया है कि आई कैन यूज एनी साइन एट मोस्ट 2 टाइम्स. अब इसका आंसर क्या आता है देखते हैं. 5 में से 4 गए, सॉरी 1 minus 3 and 2 into 1 is 2. 1 minus 3 is minus 2 plus 2, so answer will be 0. So what type of answer we need? The answer must be non-negative. नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब पॉजिटिव भी चलेगा या 0 चलेगा, लेकिन हमें what is the smallest non-negative value? Tell me what is the smallest non-negative number, that is 0, and we got 0. So answer will be option number D. So ऐसे टाइप पे क्वेश्चन में सब स्विच करना है. एक ही ऑप्शन एक ही बार यूज करके हम आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा पहले वाले टाइप पहला जो हमने आंसर निकाला उसमें आंसर 2 आया था, लेकिन हमने चेक किया कि उससे अलग आंसर आ सकता है क्या, 2 से कम आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में 1 भी था और 0 भी था. सो आई यूज्ड माइनस ट्वाइस हियर एंड हियर, आई यूज्ड प्लस साइन हियर एंड मल्टीप्लिकेशन साइन हियर. सो आई गॉट आंसर एज 0, which is the smallest non-negative number. So that is our final answer, option number D. Question number 7. I think it's from percentage. A certain number of men, sorry, not percentage, a certain number of men can complete
a piece of work in 6K days. Right? Work and time से equation. A certain number of men can complete a piece of work in 6K days, where K is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5K days? अब देखो, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज उनको काम पूरा करने के लिए, इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है या इनवर्स प्रोपोर्शन. सपोज 10 लोग एक काम 40 दिन में करते हैं. 10 लोग एक काम 40 दिन में करते हैं, तो 20 लोग वही काम कितने दिन में करेंगे? नाउ नंबर ऑफ मेन अगर इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट. और इसमें ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 400 आएगा, तो यहां पे भी वो 400 आना चाहिए. सो 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 400 आएगा? 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400, राइट. सो ये नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम आना चाहिए. सो 400 400. सो इसका मतलब क्या है? मेन अगर डबल किए तो नंबर ऑफ डेज विल बी हाफ. So that is the basic trick here. So in our example, see, number of men and number of days. They are saying number of men are how many? A certain number. So let's say X number of men. And they are saying number of days are 6K. Now, by what percent should the number of men be increased? Let's say कि अब number of men increase करके Y हो गए. इंक्रीज क्यों करना है? क्योंकि हमें वो काम अब 5K डेज में करना है. सी, नंबर ऑफ डेज कम हो गए, 6K से 5K हो गए, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मेन शुड इंक्रीज. तो वो इंक्रीज होने वाले उसका परसेंटेज क्या है? वैसे अभी हमने देखा कि मेन और डेज का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो सेम रहता है. सो 6KX, यहां पे भी वो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 5KY. ये मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है. सो 6KX इज इक्वल टू 5KY, राइट. ये हमेशा सेम रहता है. अब देखो यहां का K कैंसिल आउट हो जाएगा यहां के K से. सो 5Y इज इक्वल टू 6X. सो Y इज इक्वल टू 6/5X. So y is equal to 1.2x. So y is equal to x plus 0.2x. मतलब जो नंबर ऑफ मेन है नए वाले वो x से कितना ज्यादा है? 0.2x से. इसको लिख सकते हैं हम 20% ऑफ x. x में कितना ऐड कर दिया? 20% ऑफ x. मतलब नंबर ऑफ मेन शुड बी इंक्रीज बाय हाउ मेनी? व्हाट परसेंटेज? 20%. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 20%. ठीक है. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एंड टाइम. इसमें एक ही याद रखना है कि नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए. अगर मेन इंक्रीज हो गए तो डेज डिक्रीज होंगे और वाइस वर्सा, राइट. सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होता. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट हियर. Okay, now question number 8. X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours, right? All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work, right? So it's again from work and time, a little tricky question, because here understanding level is important. What they are saying, the important words, you should underline the important words because that decides the course of solution. How? I'll tell you. See, there are 3 persons, right? X, Y and Z.
they can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours. So X can complete in 6 hours the same work, Y can complete in 8 hours, Z also can complete individually in 8 hours. Now, however, only one person at a time can work. मतलब only one person at a time can work in each hour. मतलब एक घंटे के लिए अगर X वर्क कर रहा है तो अगले घंटे के लिए X नहीं करेगा, Y और Z वर्क करेगा. Nobody can work for 2 consecutive hours. X डायरेक्टली 2 घंटे के लिए काम नहीं करेगा, Y डायरेक्टली 2 घंटे के लिए काम नहीं करेगा. All are engaged to finish the work. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time? This is very important phrase here. Minimum amount of time, right? अगर मिनिमम वर्ड नहीं होता तो फिर पहले X 1 घंटा, Y 1 घंटा, Z 1 घंटा, फिर X 1 घंटा, ऐसा करते. यही बेसिक मिस्टेक बहुत लोगों ने किया है कि दे मिसअंडरस्टूड दैट एवरीबडी इज वर्किंग अल्टरनेटिवली. मतलब पहले X, Y, Z, फिर X, Y, Z एक एक घंटे के लिए काम कर रहे. यहाँ पे ऐसा नहीं, हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है. वी हैव टू जस्ट फॉलो 2 रूल्स हियर कि एक बंदा 1 घंटे के लिए काम कर रहा है और कॉन्जिक्यूटिव 2 घंटे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है. सो लेट्स सी, अगर हम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी है? X की है, क्योंकि वो सिर्फ 6 घंटे में वो काम पूरा करता है. सो ज्यादा से ज्यादा काम अगर X करे तो वो काम जल्दी पूरा हो सकता है. नाउ सी, सो फर्स्ट आवर, आई विल राइट हियर फर्स्ट आवर X विल वर्क, राइट. 1 घंटे में अगर X पूरा काम 6 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/6. सेकेंड आवर कौन काम करेगा? Y और Z, क्योंकि वो दोनों का टाइम उतना ही है, 8 आवर्स है. सो Y विल वर्क फॉर 1 आवर वर्क. Y का कितना होगा? 1/8. सो पहले 2 घंटे में 2 आवर्स वर्क विल बी 1/6 प्लस 1/8. दैट इज हाउ मच? So LCM is 24, 7/24. This is the amount of work X and Y will complete in 2 hours, right? So 2 घंटे में अगर इतना हो रहा है तो 6 घंटे में कितना होगा? मतलब यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स कर दिया टाइम, तो वर्क भी 3 टाइम्स हो जाएगा. So 7/21 into 3, that is 7/24. 21/24, which is 7/8. अगर 3 से मैंने रिड्यूस कर दिया, अब देखो 6 आवर्स वर्क इज 7/8. रिमेनिंग वर्क इज 1/8 की 1 से अगर माइनस कर दिया 7/8 तो रिमेनिंग वर्क विल बी 1/8. अब ये कौन करने वाला है? अब देखो, फर्स्ट आवर X काम करता है, सेकेंड आवर Y काम करता है, थर्ड आवर X, फोर्थ आवर Y, फिफ्थ आवर X, सिक्स्थ आवर Y. अब 7th आवर में हम जा रहे तो X विल बी वर्किंग. नाउ X कैन कंप्लीट होल वर्क इन 6 hours. X कैन कंप्लीट होल वर्क इन 6 hours. तो रिमेनिंग जो 1/8 वर्क है वो कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा? सो X का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, विल बी 6/8 hours, दैट इज 3/4 hours. 3/4 hours का मतलब कितने मिनट्स होता है? 45 मिनट्स. सो द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 hours and 45 minutes. And this is the minimum amount of time they will require to complete the work following the given conditions. Following the given conditions. So option number C is correct. 6 hours 45 minutes. Now these are the little tricky questions, but if 40 question they are asking, then some questions are going to be tricky, right?